Hello dear students, so now today we'll be starting with the fifth chapter, that is mole concept in stoichiometry. As you all are aware that this year most of the topics from this lessons have been removed from the syllabus, but this lesson is very important as per your future classes. So what I would like to do, although for this year only this portion is there, that is vapor density and its relation to relative molecular mass, only this topic is there from this chapter. The rest have been removed, rest topics. So what I would like to do, I would explain all the definitions which are there in the lesson, and we will not do the numericals based on those definitions. We'll do the numericals based on this topic only, but I'm going to explain you everything whatever is there in theory, although that will not come in your exam. Okay, so revising what is Boyle's law, which you have studied in class 9th. Before that, I will like to give you introduction, which you have already done in class 9, that all gases under similar conditions behave similarly. Okay, that means what are those conditions? The conditions are temperature and pressure and volume. Volume is the space occupied by the gas. So these three entities, when gases are exposed to these three different categories, they behave in a similar manner if the conditions are same. So gases, that is why we can keep all the gases under gas law. Why? Because the behavior of gas is similar under the physical standards, that is volume, pressure and temperature. They will expand and contract equally under similar conditions of temperature and pressure. So after this they have done various experiments. So first, Robert Boyle systematically studied the relationship between pressure and volume of gas, and what he found that at constant temperature, remember in Boyle's law द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो अब हम किसकी बात करेंगे? हम प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप की बात करेंगे. सो द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंड व्हाट डज इट स्टेट्स? इट सेज दैट द वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. यानी कि बॉयल्स लॉ को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारा ऐसा होता है ये. ठीक है, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक है, अब हमें इसको हटाना है. कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू के. ओके, पी वी इज इक्वल टू के, क्योंकि हमने क्या हटा दिया? हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया. तो हमारा क्या बन गया? ये हमारा ये बन गया कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा, it will always be a constant, keeping the temperature fixed. एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप होगा वो ये होगा कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और साथ में अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स आउट ऑलवेज एज अ कांस्टेंट. ठीक है, दिस इज व्हाट इज बॉयल्स लॉ इक्वेशन. अब हम इसको और इलाबरेट करते हैं कि सपोज प्रेशर पहले P1 था, फिर P2 हो गया, वॉल्यूम पहले V1 था, फिर V2 हो गया, तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये हमारी बन जाएगी. क्या बन जाएगी? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. So this equation is known as Boyle's law equation. And what does it state? It says that the product of volume and pressure, the product of volume and pressure of a given mass of dry gas at constant temperature is always a constant. Constant temperature पे जो given mass है, given mass मतलब यहाँ mass भी constant है, ये भी याद रखेंगे. तो मास एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट. तो बॉयल्स लॉ जब भी स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा कि व्हेन एवर अ फिक्स्ड मास ऑफ dry gas, that means mass is constant,
if that gas is taken, then at कांस्टेंट टेम्परेचर अगर उनका प्रेशर और वॉल्यूम जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, अगर उनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी हमारा एक कांस्टेंट ही होगा. दिस इज व्हाट इज बॉयल्स. ओके, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट इज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप. और ये टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशनशिप है, ये है हमारी चार्ल्स लॉ. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट थिंग्स वी हैव टू कीप कांस्टेंट हियर. सो रिमेंबर, प्रेशर एंड मास are constant. Pressure and mass are constant. Now keeping pressure and mass constant, the relationship states कि volume increases with increase in temperature. ये आपका जनरल परसेप्शन है, एक जनरल फिनोमिनन है कि if you increase the temperature, the volume increases. You have studied it from class 6 that why it happens, because you all know that why volume increases if you increase the temperature, keeping the pressure and mass of the gas constant. Now if you decrease the temperature, the volume also decrease. तो ये जो phenomenon है, इसको स्टडी किया जैक्विस चार्ल्स ने, and he said that okay, there is an increase, but that increase is actually fixed. हर डिग्री के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंक्रीज होता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू एवरी गैस बिहेव सिमिलरली. तो हर गैस, चाहे कोई भी गैस आप लेंगे, अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए बढ़ेगा. और वो क्या है, लेट्स सी. सपोज यू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, सो दैट गैस विल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री. मान लीजिए उसका 0 डिग्री पे कोई भी उसका वॉल्यूम था, सपोज का वॉल्यूम था V0 एट 0. ये अपने एक्सप्रेशन इफ यू रिमेंबर क्लास 9th में किया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. ऑल्दो अभी हम वो नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हम सिर्फ इसको स्टडी कर रहे हैं एक डेफिनेशन को, तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा इलाबरेट नहीं कर रही हूँ इसको. तो अगर कोई टेम्परेचर, कोई वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब आप इसको 1 डिग्री से इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर इस वॉल्यूम में जो इंक्रीज होगा वो होगा 1/273 का. ठीक है, तो जो भी वॉल्यूम होगा एट 0 डिग्री उसमें 1/273 का इंक्रीज हो जाएगा. अब फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए 0 से 1 आया तो 1/273, उसके बाद 2 गया तो 2 बार 1/273 इंक्रीज, फिर एक बार और 1/273. तो इस तरीके से करते करते हमने एक डेरिवेशन किया था इफ़ यू रिमेंबर. और वो क्या डेरिवेशन था, दैट v, जैसे भी मैंने किया, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. अब मुझे ये हटाना है तो v इज इक्वल टू t मल्टीप्लाइड बाई k. k इज अ कांस्टेंट, एंड नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, सो इट विल बी v अपॉन t. तो ये आ गया हमारा चार्ल्स लॉ, विच सेज दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस is directly proportional to its absolute temperature if the pressure remains constant. और इसी को अगर हम इंक्रीज कर दें कि टेम्परेचर वॉल्यूम V1 से V2 गया, टेम्परेचर T1 से T2 गया, तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, इट विल बी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. एंड दिस इज चार्ल्स लॉ इक्वेशन. ये है हमारी चार्ल्स लॉ इक्वेशन. और क्या कहती है ये इक्वेशन, इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड द वॉल्यूम वुड बी डबल्ड. इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस टू हाफ द वॉल्यूम वुड ऑल्सो बी रिड्यूस टू हाफ. सो दिस इज व्हाट चार्ल्स लॉ इज. So now we have seen two equations, one of Boyle's law and one of Charles law. And now suppose if I want to combine both the laws, that is Boyle's law and Charles law. अब मैं तीनों एंटिटीज एक ही उसमें ले आती हूँ, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो अभी हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो ये आ गया हमारा एक इक्वेशन जो हमने दोनों को कंबाइन करके लेके आया है. एंड नाउ सपोज आई वांट टू remove this proportionality constant, so it will be v is equal to t upon p multiplied by k.
and from this, if I want to find out the value of K, so K is equal to PV upon T. So this is what we have found by combining both the laws, that is Boyle's law and Charles' law. And again, if I increase the pressure from P1 to P2, V1 to V2, T1 to T2, so my equation will come as K is equal to P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 अपॉन T2. और ये जो इक्वेशन है, अब जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई है आफ्टर कंबाइनिंग दिस इज नोन एज गैस इक्वेशन. Now you have to understand one more term, that is STP. What is STP? STP is standard temperature and pressure. तो इसका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है उसकी वॉल्यूम क्या है. स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हमने चूज़ किए हैं वो है 0 डिग्री या 273 केल्विन, और हमारा जो प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 mm ऑफ Hg और 76 mm ऑफ Hg. ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में यूज़ करते हैं. हमारा प्रेशर और हमारा टेम्परेचर, ये हमारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वैल्यूज़ हैं. देन वन मोर वैल्यू इज एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल. व्हाट इज एब्सोल्यूट स्केल? A temperature scale with absolute zero, that is 0 Kelvin as the starting point. ऐसा स्केल जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है 0 केल्विन, वो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल. और एब्सोल्यूट स्केल का मतलब हो गया -273 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है वो स्केल, और -273 डिग्री सेल्सियस क्या है? केल्विन है. यू ऑल नो हाउ टू कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस. Now this new branch you are studying, that is stoichiometry. What is stoichiometry? It is the branch which studies the quantitative relationship. And what is quantitative relationship? That how much reactants and how much product are produced in a given reaction. कितनी क्वांटिटी बनी है, कितना लिया था हमने, अब वो कितना हो गया है, कितना बन गया है. सो ये सारा जो है ना क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करता है केमिकल रिएक्शंस की, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री या सिंपल स्टोइकियोमेट्री. देन कम्स गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. अभी हमने जो भी पढ़ा था उसी में ही आगे इसको पढ़ाएंगे क्योंकि गैस के साथ ही चल रहा है सारा ये. तो अभी हमारा क्या है, व्हाट डज गे-लुसाक studied? He observed. Gay-Lussac observed that there is a relationship. Whenever gases combine to form something new, there is always a relationship which exists. For example, he has taken that when hydrogen and oxygen react together to form water, and suppose I balance this, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है. तो इसमें उसने क्या स्टडी किया कि इफ आई टेक 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, देन हाउ मच आई हैव टू टेक हाइड्रोजन, इट विल बी 2 liters. And how much water will be produced? 2 liters. So he has said that there is a relationship between the gases to produce, suppose water vapor here it is water vapor, not liquid form, so this is also a gas. So this relationship or this ratio, that is 1, so this is the ratio of combining of hydrogen and oxygen to give water vapor. And he extended his study and later on he generalized these observation as law of combining volume of, and he said that when gases react, they do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volume of the gaseous product. अगर गैस ही बन रही है दोनों gaseous product के साथ, तो उनका जो volume होगा वो एक simple ratio में होगा. At STP, कब? STP पे, that is standard temperature and pressure पे. So what does he say? That Gay-Lussac
ने जो बात कही थी, इट वॉज ओनली वैलिड फॉर गैसेज, नॉट वैलिड फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम वो जीरो कंसिडर करके चलते थे, वो सिर्फ उनका जो लॉ था इट वॉज वैलिड टू फॉर गैसेज ओनली, ही वॉज नॉट कंसिडरिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो जैसे कि अब एक रिएक्शन यहाँ पे देखिए आप, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया गैस। तो जो ये रिलेशनशिप है यहाँ पे है आपका N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, यानी 1 का इस टू 3 इस टू 2। तो ये रिलेशनशिप है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन with 3 volume of hydrogen will give 2 volume of ammonium gas. Ammonia gas. So this is what he was actually working on, that all gases experimentally have the relationship in ratio. Carbon dioxide का देखेंगे 2CO plus O2 gives 2CO2, so 2:1:2 is the ratio in which carbon monoxide and oxygen are combining to form carbon dioxide. So this is known as Gay-Lussac's law. Okay, let's see one example. I want to explain what is limiting reagent or limiting reactant. इसकी सिर्फ हम डेफिनेशन करेंगे। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट, इस वाली इक्वेशन में आप देखिए 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट, यानी जितनी क्लोरीन है उतना ही हाइड्रोजन हमें रिएक्ट कराना है। दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल सेम है, लेकिन मान लीजिए आपने 6 लीटर तो ले ली हाइड्रोजन और 5.6 लीटर क्लोरीन के लिए, यानी दिस वाज 6 लीटर, यानी दिस वाज 6 लीटर एंड दिस वाज 5.6 लीटर्स। चूँकि दोनों का इक्वेशन के हिसाब से वॉल्यूम सेम है, यानी कि पूरे 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन विल बी यूटिलाइज्ड एंड 5.6 लीटर हाइड्रोजन विल बी यूटिलाइज्ड। जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बची है आपकी, ठीक है, वो जो है दैट इज 0.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल रिमेनिंग, क्योंकि उसके हिसाब से क्लोरीन आपने नहीं लिया। अगर 6 लीटर क्लोरीन होता तो 6 लीटर हाइड्रोजन के साथ दोनों ही मिलके खत्म हो जाते। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको एक बात समझनी है कि चूंकि क्लोरीन जो है वो पूरी तरह से यूज्ड अप हो गया है, हाइड्रोजन पूरी तरह से यूज्ड अप नहीं हुआ है, हाइड्रोजन के पास 0.4 बचा हुआ है लीटर्स। तो जो भी रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है इन द रिएक्शन, दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्लोरीन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। एंड व्हाई? बिकॉज क्लोरीन इज कंप्लीटली यूज्ड अप। अगर इसको हम उल्टा कर देते, यहाँ पे लिख देते 6 लीटर ऑफ क्लोरीन एंड 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होता? तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाता? हाइड्रोजन हो जाता। क्यों? क्योंकि 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करता और हाइड्रोजन यूज्ड अप हो जाता। तो इस एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट रहता, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि क्लोरीन पूरा यूज्ड अप हो गया और हाइड्रोजन बचा रह गया, तो जो पूरा यूज्ड अप हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। नेक्स्ट इज Avogadro's law. Avogadro's law which states that equal volume of all gases under STP contains the same number of molecules. अब उन्होंने क्या स्टडी करा? उन्होंने कहा ठीक है, सब इक्वल वॉल्यूम में रिलेशनशिप जो होता है वो रेशियो होता है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर आप एक इक्वल वॉल्यूम गैस ले लें, कोई भी गैस, अपने वॉल्यूम ले लिया, कोई भी वॉल्यूम ले लिया, सपोज यू हैव टेकन 1 लीटर ऑफ गैस, तो दैट 1 लीटर ऑफ एनी गैस विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जैसे एग्जाम्पल उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला कि अगर आपने 1 लीटर हाइड्रोजन लिया है तो 1 लीटर हाइड्रोजन गैस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए x मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, तो 1 लीटर ऑक्सीजन में भी यही रहेगा, 1 लीटर ऑक्सीजन में भी x मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भी x मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, 1 लीटर ऑफ, अगर आपने 1 लीटर ऑफ वाटर वेपर ले लिया उसमें भी x मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। सपोज हमने 1 लीटर में हाइड्रोजन ले लिया और 1 ही लीटर हमने
ऑक्सीजन गैस ले ली और दोनों को सेम प्रेशर पे और सेम टेम्परेचर पे रखा उनको, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी सेम। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि एक्स वॉल, मान लीजिए एक्स कोई नंबर है और अगर वो 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन में है तो वही एक्स जो है 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में भी होगा, कीपिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर दिस वॉल्यूम। Okay, so this is what Avogadro law is. We've already explained this. 1 liter of hydrogen contains the same number of molecules as 1 liter of oxygen or 1 liter of chlorine or any other gas, provided the volume of all gases is measured at the same temperature and pressure. Same temperature और pressure पे अगर आपने कोई गैस रखी है तो उसका जो वॉल्यूम है अगर आपने फिक्स कर दिया है वो भी सेम है, तो वो कैसा होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी same. Atomicity we have already studied. You all know about the atomicity. What are monoatomic, what are diatomic, what are triatomic, and what are tetraatomic, what are octaatomic molecules. Okay, now we are combining Avogadro's law and Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law में आपने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम से कंबाइन होते हैं, सिंपल रेशियो होता है वॉल्यूम का। फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ और हाइड्रोक्लोरिक गैस। अगर हम इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लेके जाएं तो यहाँ पे अगर हम इसको n मॉलिक्यूल माने, इसको भी n मॉलिक्यूल माने, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 यहाँ पे लग गया है। तो इसका मतलब गे-लुसाक लॉ और एवोगाड्रो लॉ एक ही उस पे काम कर रहे हैं। दे बियर द सेम लॉजिक that all the gases will combine to form a new gas in a simple ratio of molecules as well as volume. Okay, now let's understand something about relative atomic mass. For that, let's say that the mass of one hydrogen atom, that means the lightest atom, which has only one, which has got only one proton in it, it is 1.67 multiplied by 10 to the power minus 24 gram. Okay, now this is very, very small. If you see this unit is very, very small. So now what to do, because it was easy to find out the mass of one hydrogen atom, but it is very difficult to find out the mass of other atoms. So what they have said actually it is not easy to measure. So what we can do, but it is easy to compare. So let's compare. And how did they compare it? They compared it with hydrogen atom. So that is why this word relative is used, because it means relative means comparison with some other element. And Dalton said that let's compare with hydrogen being the lightest, and we know that it has got only one proton, hydrogen one has got only one proton. So, and we know its mass. So, let's compare other atoms with hydrogen. So, they skip to carbon 12. And what does this carbon 12 means? Carbon 12 means that it is the isotope of carbon which has 6 protons and 6 neutron. So, they said that the relative atomic mass will be mass of one atom divided by mass of one carbon 12 atom. And by this formula, suppose I want to take out of hydrogen, so mass of one atom of hydrogen was 1 and mass of one carbon 12 atom was 12. तो ये आपका hydrogen का आ गया. Then if I want to take oxygen, so mass will be 16 upon 12. If I ask nitrogen, so it will be 14 upon 12. तो ये जो values आ रही थी ये बहुत complicated थी. तो इन वैल्यूज़ को हटाने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस फॉर्मूला में एक चेंज कर दिया और उन्होंने बोला कि हम इसको करेंगे
1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. सो 1/12 कर दिया उन्होंने इसको. मास ऑफ 1 एटम इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 एटम ऑफ कार्बन 12. तो 1/12 का मतलब क्या हुआ, 1/12 ऑफ 12 तो इज इक्वल टू 1. तो 1/12 यानी यहाँ से 1 से डिवाइड होगा ये. अब ये 1 से डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, 1 से डिवाइड हुआ तो 14 आ गया, 1 से डिवाइड हुआ तो 16 आ गया. लेकिन उसका कंपैरिजन किससे हो रहा था, कार्बन से. तो इट वाज इजी टू कंपेयर विथ कार्बन. तो इस तरीके से ये रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन आ गई आपकी, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज द मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम. तो सिमिलरली वो सारी यूनिट्स वैसे ही आ गई जैसे थी. तो ये तो हो गया आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, या इसको हम और भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक वेट. और इसकी यूनिट हमने क्या बता दी, इसकी यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज AMU. दिस इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट. ओके, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम लेते हैं. चलिए, तो नाइट्रोजन एटम अगर हम लेंगे तो उसका किस तरीके से हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे. तो नाइट्रोजन का 14 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1/12 ऑफ कार्बन ऑफ मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम. ठीक है, यहां से इसका यही मतलब आ रहा है. उसी तरीके से अगर हमने ऑक्सीजन का ले लिया तो वो भी यही हो जाएगा, 16 इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम. इसका मतलब जब भी हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो हमें ये लिख के और इसके आगे ये इतना लंबा एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, दैट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम. और आपको पता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम एक, ये ऐसा हुआ तो ये हो गया 1. तो एक्चुअली में ये 1 होता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 16 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से. तो बार बार इतना लंबा लिखने के बजाय हमने इसको क्या लिख दिया, ये जो हमारा आ रहा था इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने लिख दिया AMU. ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है. अगर हमें मास ऑफ ऑक्सीजन है तो वो हमारा हो जाएगा 16 AMU. एंड व्हाट इज AMU, द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इज, क्या है एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. तो ये AMU की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी. दैट व्हाट इज AMU, AMU इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम which is equivalent to 1. तो इसी तरीके से आप किसी का भी नाइट्रोजन का भी अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो 14 AMU एंड वेयर एज AMU क्या है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम यानी कि 1. ठीक है, और अगर हम 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम पूछें कि 1 AMU ग्राम में कितना होता है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.661 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम. ये हमारा 1 AMU है. 1 AMU इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 इंटू 10 टू द पावर -24. ओके, तो ये क्या है 1 AMU, 1 AMU इज 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम का मास. तो कार्बन 12 एटम का मास ये है. ठीक है, ये है मास कार्बन 12 एटम का, दैट इज 1.9926 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -23 ग्राम. अब 1 AMU अगर निकालना है इसका हमें, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से, क्योंकि वो क्या है, वो है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम. तो मास ऑफ 1 C12 एटम ये रहा, इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारा आ जाएगा 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी इन ग्राम्स, दैट इज 1.661 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम.
So atomic mass, relative atomic mass is the mass of one atom. And what is relative molecular mass? It is mass of one molecule. And how many times, how much it is heavier than 1/12 of the mass of a carbon 12 atom. Let's see what is RMM, that is relative molecular mass. So relative molecular mass, for example I want to find out H2SO4, तो सबसे पहले मैं इसका molecular mass निकालूंगी. हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 4 इंटू 16, दैट इज, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा आ गया 98 AMU. तो अब ये 98 AMU इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन 1/12 of the mass of carbon 12. तो 1/12 of the mass of carbon 12 means 1. तो कितना हैवी है? 98 times it is heavy than carbon 12 atom. तो ये हो गया आपका relative molecular mass. अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम कुछ molecular masses निकालते हैं. For example, CuSO4.5 H2O. अभी हम इसका निकालेंगे. तो कॉपर का जो एटॉमिक मास है वो है 63.5 प्लस सल्फर का है 32. 4 ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 4 यानी 64 प्लस एक वाटर का होता है 18, तो 5 का हो गया 5 इंटू 18, दैट मीन्स 90. Okay, now we'll add this, so it will come around 249.5 AMU. So this is the molecular mass of CuSO4.5 H2O. So ammonium sulfate, so this is the formula, and then we will be calculating the molecular mass. So N is how much? N is 14 plus 4 hydrogen, so 4, and then plus 32 for sulfur, and plus 16 4s are means 4 oxygen, with 1 oxygen is 16, so 4 will be 16 into 4, that is 64, and this multiplied by 2 because this is 2 here, so 2 times whatever the formula comes, it has to multiply 2 times. So 18 into 2 plus 32 plus 64, so 36 plus 32 plus 64 comes out to be 132 AMU. So this is the molecular mass of ammonium sulfate. Okay, let's understand this concept of 1 mole. Now what is 1 mole? 1 mole is nothing but a number. एक नंबर है 1 mole. जैसे कि हमारा 1 डजन एक नंबर है, और 1 डजन में कितने नंबर आते हैं? 12, है ना, एक दर्जन 12. वैसे ही 1 मोल में एक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23. ये आता है. जैसे कि एक डजन 12 होता है, वैसे ही 1 मोल इज दिस नंबर. तो सबसे पहले तो मैं मोल का ये मतलब समझ लेना है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोल. मोल इज नथिंग बट दिस नंबर. इफ आई से 1 मोल ऑफ एटम, तो उसके अंदर ये आएगा एटम, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 एटम. और इफ आई से 1 मोल मॉलिक्यूल, तो दिस मॉलिक्यूल, दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब ये समझेंगे कि मोल कैसे हम इसको रिलेट करते हैं अपने एटॉमिक मास से. सपोज हमारा ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16U.
या 16 AMU. Now suppose I convert this 16U to 16 gram. That means कि एक हमारा ऑक्सीजन का एटम यहाँ पड़ा हुआ था और उसका वेट था 16U. Now I want that this should measure 16 gram. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे बहुत सारे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स डालने पड़ेंगे, बहुत सारे. क्यों? क्योंकि जब ये ऑक्सीजन के एटम्स बहुत सारे हो जाएंगे तब जाके ये 16 ग्राम होंगे. और ये 16 ग्राम कब होंगे? जब इनके अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे? अवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर. ठीक है, जब इतने ऑक्सीजन के एटम मैं इस बॉक्स में डाल दूंगी तब जाके उनका जो वेट आएगा वो 16 ग्राम आएगा. तो ये तो एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन का. चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. मान लीजिए हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देख लिया. तो हाइड्रोजन का जो मास है वो है 1 AMU. ना सपोज आई वांट टू टेक 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. बहुत बड़ा होता है ग्राम, ग्राम आपको नज़र आता है, जबकि AMU आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता, बहुत छोटी यूनिट है. अगर मैंने बोला कि मुझे 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए इस वाले कंटेनर में, तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे एटम्स? ये आ जाएंगे आपके 6.022 इंटू 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स विल मेक 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो अब इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मुझे लेना है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? उसमें पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स या एटम्स. ओके, ऑक्सीजन का ले लेते हैं. इफ आई वांट 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो उसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? उसके अंदर होंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं. अगर मुझे 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? वो भी यही होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उस कंपाउंड का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है उसको अगर हम ग्राम में लिख दें, जैसे ऑक्सीजन का 16 AMU था, उसको हमने ग्राम में लिख दिया 16 ग्राम में, तो उसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. और वो जो फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो है अवोगाड्रो नंबर. और इस अब आपको रिवाइज करना है जो मैंने अभी आपको बताया था, अवोगाड्रो लॉ. एंड व्हाट वाज अवोगाड्रो लॉ? अवोगाड्रो लॉ ने क्या बोला था कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम में अगर हम एक इक्वल वॉल्यूम लेते हैं गैस का अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ लगाएंगे. तो वो जो हमारा वॉल्यूम है वो है 22.4 लीटर्स एट STP. मतलब इस टेम्परेचर और प्रेशर पे, इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.4 लीटर ऑफ एनी gas will contain how many particles? Will contain 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So this volume is known as molar volume. क्यों मोलर वॉल्यूम क्यों बोला इसको मोलर वॉल्यूम इसलिए बोला क्योंकि दिस इज द वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल. क्योंकि ये मैंने बोला ना मोल है, ये नंबर मोल है. तो जब इतने लीटर्स के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, यानी 22.4 लीटर्स के अंदर 1 मोल पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी मोलर वॉल्यूम. जब हम लिखते हैं, नाइट्रोजन का ही एग्जाम्पल लेंगे, जब हम लिखते हैं 14 ग्राम या 14 AMU,
तो ये है इसका एटॉमिक मास और ये है उसका ग्राम एटॉमिक मास, मतलब इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, बट यहाँ पे जब ग्राम लग जाता है तो वो उसका बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास. So what is gram atomic mass? It is the mass of element expressed in gram. So mass of oxygen is 16 AMU और उसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा 16 ग्राम. अब आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किस में लगेगा, हमारा वाटर में लगेगा. तो वो देख लेते हैं कैसे. जैसे वाटर है उसको हमने लिखा H2O और उसको हमने लिखा 18U और एक हमने लिखा 18 ग्राम. तो ये तो उसका हो गया मॉलिक्यूलर मास और ये हो गया उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज GMM. So what is gram molecular mass? Gram molecular mass is the mass expressed in grams. तो किसी भी चीज़ को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, सेम नंबर को, बस कुछ नहीं करना है, यू हटाना है और ग्राम लगाना है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका ग्राम. अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास और अगर एटम है तो एटॉमिक मास. तो GAM and GMM, gram atomic mass and gram molecular mass. Okay, now starting the very important topic which is there in your syllabus, that is relative vapor density. So from here you have to exactly, actually the chapter is starting. Till now I have just given you introduction because those were very important points and you should understand what is the mole concept and all, but your real syllabus for this year starts from here. So what is relative vapor density? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि it is very difficult to find out the density of a gas. The property that is density of a gas, it is very difficult to find out. So what we do, we actually try to relate it with some known density. Okay, some known density. तो इसीलिए रिलेटिव वर्ड फिर आ गया क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं. तो जो फॉर्मूला बनता है हमारा कि व्हाट इज एक्चुअली रिलेटिव वेपर डेंसिटी, इट इज द रेशियो. और किस चीज का रेशियो है, मास ऑफ, इट इज द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ गैसेस अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो चलिए देखेंगे क्या है एक्चुअली में वेपर डेंसिटी. तो वेपर डेंसिटी सबसे पहले है हमारा मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ एनी गैस. एक गैस ले ली हमने कोई भी, उसका वॉल्यूम V ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ हाइड्रोजन गैस से. अब आपको समझना है कि हमने यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट रखी है. यहाँ पे हमने एक तो वॉल्यूम हमारा दोनों का सिमिलर है, जो दोनों गैसेस हैं सेम वॉल्यूम की हैं, और हमारा जो टेम्परेचर है वो भी सेम है और प्रेशर भी हमारा सेम है. दैट मीन्स सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो गैसेस हैं. ओके, तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए. फिर से बता रही हूँ एक बार. You have to take same volume of both the gases. You have to keep them at same temperature and pressure. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया रिलेटिव वेपर डेंसिटी का. अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा ये जो फॉर्मूला आया है इसके अकॉर्डिंग हमने सेम टेम्परेचर पे एक सेम वॉल्यूम दोनों गैसेस का रख दिया. अभी मैंने आपको अवोगाड्रो लॉ पढ़ाया है. अवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग equal volume of all gases contain equal or same number of molecule at similar condition of temperature and pressure. ठीक है, अवोगाड्रो लॉ दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम लिया है इस गैस का और वॉल्यूम लिया है इस गैस का, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिमिलर होंगे. क्यों होंगे सिमिलर, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है और वॉल्यूम सेम है. तो इसी को, इस इक्वेशन को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल सेम होंगे. हम अगर यहाँ पे लिख देते मास ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस तो नीचे भी हो जाता मास ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो ये जो इक्वेशन आई है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ आई है दैट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस. चूंकि ये हाइड्रोजन गैस डायटोमिक है, दो एटम्स है इसमें, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं
मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब किसी भी गैस का 1 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का शॉर्ट फॉर्म है ReLVD। ओके, रिलेटिव वेपर डेंसिटी का शॉर्ट फॉर्म है ये। तो इसका मतलब अब हमने इसको 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस को सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस से, क्योंकि हमें पता है क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है, उसके गैसियस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। अब जब ये हमने लिख दिया तो हम इसको, इस 2 को यहाँ आगे ले आए और 2 इंटू करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से, that mass of 1 molecule of any gas divided by 2 into mass of 1 atom of hydrogen gas। तो यहाँ पे 2 एटम्स था, हमने इसको 1 एटम कर दिया और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए कि हम 2 इंटू रिलेटिव डेंसिटी क्यों करते हैं। तो ये जो हमारा 2 है, अब ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ ये डिवीजन में है, वहां किस में चला जाएगा, वहां ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप है ये वाला जो नोट्स हैं ये। So this 2 is in division here, and when it will go here, it will be multiplication. So 2 into relative vapor density is equal to mass of 1 molecule divided by mass of 1 atom of hydrogen gas. ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पे हमने मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस इसलिए लिखा है क्योंकि 2 एटम्स था, ये 2 हमने यहाँ पे इसको भेज दिया। अब जब आप इसको पढ़ रहे हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आपको पता है कि इसको हम व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस, एक एटम का मास क्या होगा हाइड्रोजन गैस का। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, इसका कंपैरिजन हम करते हैं 1 कार्बन 12 वाला, वही जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पीछे AMU वाला पढ़ा था वो आप यहाँ पे लगाएंगे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ओके, so mass of 1 hydrogen is 1/12 of the mass of 1 carbon 12 atom। ये लाइन कहाँ से आई, अभी जो पिछला हमने डिस्कशन किया था वहां से ये लाइन आई है। ठीक है, तो अब हम इस लाइन को इस लाइन से रिप्लेस करेंगे। ओके, ये लाइन इस लाइन पे जाएगी, रिप्लेस हो जाएगा, एंड द फॉर्मूला बिकम्स मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस, वो तो है ही हमारा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस की जगह हमने लिख दिया 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। नाउ जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, तो आपको अपनी बुक में एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, दैट इज RMM का, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। एंड व्हाट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास सेज दैट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इस पूरे को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, RMM, दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर mass. So this is equal to relative molecular mass. तो इस वाली इक्वेशन में अब हम ये वाला जो हमारा पार्ट है इसकी जगह हम क्या डाल देंगे, RMM। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो यहीं से देखिए आपकी डेफिनेशन आ जाएगी, 2 टाइम्स रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और अगर इस 2 को हम यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन में था इसको डिवीजन में भेज देंगे तो हमारे डेफिनेशन बन जाएगी दैट रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, या और भी बोल सकते हैं हम इसको यहाँ पे दैट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज 2 टाइम्स रिलेटिव वेपर डेंसिटी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ में समझ में आ गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि व्हाट इज रिलेटिव वेपर डेंसिटी, हाउ इट इज रिलेटेड टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना भी सिखा दिया है मैंने, आपको पता भी है किस तरीके से हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं सब्सटेंसेस का। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव वेपर डेंसिटी का पूरा एक्सप्लेनेशन कि व्हाट इज रिलेटिव वेपर डेंसिटी एंड हाउ इट इज रिलेटेड। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि व्हाट इज ये वाला जो रिलेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, और यू कैन से रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज व्हेन यू डिवाइड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बाय 2। Okay, so now let's see that how this
relative density gives the value of molar volume of gases at STP, and it introduces the concept of Avogadro's number. I've already explained you what is molar volume. It is the volume of 1 mole at STP, which is equal to 22.4 liters या 22.4 dm cube, because 1 liter is equal to 1 dm cube. तो चलिए इसका जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन वाला लेके देखते हैं हम कि डायरेक्ट वेइंग से पता चला कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, या जिसको बोलते हैं हम 1 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, वेज 0.089. डायरेक्ट वेइंग मेथड लगाया, उसमें वे करा तो एसटीपी पे पता चला कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन वेज 0.089 ग्राम. तो उसको यूनिटरी मेथड में करते हैं. एसटीपी आपको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th में कि व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm प्रेशर, ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है. 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी वेज 0.089 ग्राम. तो अब इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना ऑक्यूपाई करेगी, वॉल्यूम कितना होगा, 1/0.89, दैट इज 11.2 लीटर्स. ठीक है, और अगर इसको 2 ग्राम कर देंगे तो 2/0.089, दैट इज 22.4. और ये जो 2 ग्राम है ये क्या है, ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है. मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 2, और इसको अगर हम ग्राम में लिख दें तो ये हमारा हो जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और यही जो होता है वो 1 मोल होता है उसका. ठीक है, तो ये 1 मोल आ गया आपका, 1 मोल मॉलिक्यूल. तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 22.4 लीटर्स. तो यही है आपका मोलर वॉल्यूम कि जो भी गैस है उसकी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है दैट इज मोलर वॉल्यूम, एंड इट इज फिक्स्ड फॉर ऑल गैसेस एट एसटीपी. कोई भी गैस हो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर्स एट एसटीपी. अब इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे अभी हमने फॉर्मूला समझा था कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस. वॉल्यूम मैंने 1 लीटर ले लिया, वहां पे आपने फॉर्मूला में लिखा था ना मास ऑफ वॉल्यूम वी, तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर ले लिया. मान लीजिए अब आपको ये वाला वॉल्यूम पता है, ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो आप इस तरीके से हो जाएगा ये कि मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस. हमने कितना निकाला था, 0.089 ग्राम. तो जो 1 लीटर ऑफ एनी गैस whose vapor density at STP is D would weigh D into 0.089 ग्राम at STP. ठीक है, तो D into 0.089 ग्राम will occupy 1 liter. तो खाली D ग्राम will occupy 1/0.089, and 2 into vapor density will occupy 2/0.089, that is 2D 22.4 liters. और 2D क्या होता है, 2D is molecular mass. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ that the gram molecular mass of any gas occupies 22.4 liters. ये डेरिवेशन आया है आपका, समझ में आ गया कैसे मॉलिक्यूलर मास जो है वो 22.4 लीटर्स एट एसटीपी ऑक्यूपाई करता है. So gram molecular mass is equal to 1 mole which contains these many particles, maybe atom, maybe molecule, and it occupies 22.4 liter if it is gaseous gaseous substance.
then it will occupy 22.4 liter, and this is only equivalent to 1 gram molecule also, and this is known as molar mass also. Molar mass. What is molar mass? Mass of 1 mole. 1 mole means ग्राम मॉलिक्यूलर मास. यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम वाटर का लेते हैं तो वाटर का जो मास है वो 18 AMU है. इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 18 ग्राम हो जाएगा. ये 18 ग्राम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, यही इसका 1 मोल है. और इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं. और अगर ये वेपर स्टेट में है तो इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स of volume. So this is the molar mass of water. Number of moles is equal to mass given, grams में जो भी mass दिया है, mass given in gram divided by molar mass. Molar mass मतलब molar mass means gram molecular mass. Okay. और दूसरा फार्मूला जो है वो है आपका नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP गिवन, जो भी दिया हुआ है, अपॉन मोलर वॉल्यूम, and molar volume at STP is always fixed, that is 22.4 liters. तो ये दो फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे. In the next lecture I'll be explaining or taking up few numericals.